Assalamu alaikum, dear students. Welcome in the class of Inorganic Chemistry 2. And as you people know that we are studying complexes of pi acceptor ligands. And in this chapter today, we will discuss about the introduction, preparation, properties, and some of the specific uses of nitrosyl complexes. So, as you people can see that this presentation is submitted by Muhammad Mubin Khan of the Morning Group, and basically it was a good effort, although I have to make number of corrections as well as amendments. So before going into nitrosyl complexes, I would like to introduce nitric oxide molecule. I would like to discuss about nitric oxide molecule. So the nitric oxide molecule has one paired electron residing in an antibonding pi star molecular orbital. जैसा कि हमने कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस में भी देखा था कि बाय मीन ऑफ molecular or orbital diagram, first we had discussed the structure of carbonyl molecule. Likewise, I have given here the uh, molecular orbital diagram of nitric oxide molecule, and as you can see, these are the molecular orbitals of nitric oxide, while here you can see the atomic orbitals of nitrogen and atomic orbitals of oxygen, and you can also see that atomic orbitals of nitrogen, they are at higher energy level, while atomic orbitals of oxygen, they are at lower energy level. So in case of the participation of inner orbital electrons, जो inner orbital electrons हैं 2s molecular orbital, sigma 2s and sigma star 2s, which are formed by the combination of 2s orbital and 2s orbital of oxygen and 2s orbital of nitrogen. So this results in the formation of two molecular orbitals. One is bonding and the other is anti-bonding. तो ये वाले चारों इलेक्ट्रॉन्स में से पहले दो जो है इसको फिल करेंगे, फिर इसको, एंड एज यू कैन सी दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in bonding molecular orbitals is equal to the number of electrons in anti-bonding. So up to this, there is no bond formation between nitrogen and oxygen. But then you people know that in 2p orbitals of oxygen, we will have 4 electrons, while in 2p orbitals of nitrogen, we will have 3 electrons, and all of these 3 electrons, these are unpaired, राइट अब ये वाले दो पी 2p ऑर्बिटल्स और ये वाले 2p ऑर्बिटल्स because of their combination there will be the formation of these molecular orbitals. So these 6 atomic orbitals, they will combine and this will result in the formation of these 6 molecular orbitals. 3 of them we call them as bonding molecular orbitals, you people should know, और ये वाले जो ऊपर वाले हैं इनको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ये स्टार वाले जो हैं, ठीक है। अच्छा, अब पहले क्या होगा, ये जो पहले जो है ये और इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल के पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फिल होंगे, and as you can see that we have 7 electrons in the atomic orbitals of oxygen and nitrogen. अच्छा जी, अब इन 7 इलेक्ट्रॉन्स में से 6 जो हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएगा और एक जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएगा, which has been given here that in nitric oxide molecule one unpaired electron should be present in pi star molecular orbital, and with the help of diagram we have seen this electron which has occupied pi star yani anti bonding molecular orbital of nitric oxide molecule.
अब अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2. So as you can see, there are 6 electrons present in bonding molecular orbitals, uh, and 1 is present in anti-bonding. So we will have 5 divided by 2, 2.5. It means the bond order in nitric oxide molecule is 2.5, which can be represented by this structure, and the bond length between nitrogen and oxygen in nitric oxide is 115 picometer. So the half bond is represented by a dashed line. अच्छा जी, अब अगर हम ये वाला इलेक्ट्रॉन जो एक यहाँ पे है नाइट्रिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल में, उसको हम रिमूव कर दें तो बॉन्ड ऑर्डर जो है दिस विल इंक्रीज फ्रॉम 2.5 to 3. सो दिस इज इजीली अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम दिस फॉर्मूला कि अब अगर एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन ना रहे, राइट, क्योंकि जब हम वो पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम आयन बन जाएगा जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे NO प्लस। आगे जाके हम इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जब नाइट्रोसोनियम आयन बन जाएगा तो जाहिर है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग वाला ही रिमूव होगा और बॉन्ड ऑर्डर जो है यहाँ पर यानी ये 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 ये 3 हो जाएगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो फिर जो है बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। और एक्चुअली क्या है कि ये जो नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस हैं इनमें आमतौर पे यही तस्वुर किया जाता है कि नाइट्रोसोनियम आयन में नाइट्रोजन के ऊपर ये जो लॉन पेयर होता है वो पार्टिसिपेट करता है मेटल के साथ बॉन्डिंग में, ठीक है। तो एक लॉन पेयर ये नाइट्रोजन का और एक वो इलेक्ट्रॉन जो पहले से रिमूव हुआ है, तो इसलिए ये तस्वुर किया जाता है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है यूजुअली बिहेव्स एज दो इट डोनेट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए ये तस्वुर किया जाता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। सो दिस इज द कैनोनिकल फॉर्म्स रेजोनेंस फॉर्म ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। अब देखें ओवरऑल मतलब नाइट्रोसोनियम आयन ये अगर पॉजिटिव आयन इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूवल अगर ऑक्सीजन के ऊपर है तो ये आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है और आपको पता है कि नाइट्रोजन जब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर एक लॉन पेयर बचता है और ऑक्सीजन जब ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो उन दो लॉन पेयर्स में से एक ही इसके ऊपर बाकी बचेगा। अच्छा, अब इसके जो सेकंड कैनोनिकल फॉर्म है, अगर ये वाला बॉन्ड हम यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर दें सो ऑक्सीजन विल गेट इट्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है ये अब नाइट्रोजन के ऊपर शो हो जाएगा। सो दीज आर द 2 कैनोनिकल फॉर्म्स और रेजोनेंस फॉर्म ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन। तो जब नाइट्रिक ऑक्साइड पॉजिटिव आयन बनाता है तो उस पॉजिटिव आयन को हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो नाइट्रोसोनियम आयन जब मेटल के साथ लगता है तो एक तो पहले ही अपना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन देके और फिर ये नाइट्रोजन के ऊपर अपना लॉन पेयर मेटल के साथ बॉन्डिंग के लिए यूज करता है, ठीक है। इस तरह से ये तस्वुर किया जाता है कि ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का मॉलिक्यूल है ये 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है मेटल को। So the things which I discussed on the previous slide, now you can see it in the written form, ठीक है। तो बहुत सारे जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं when they react with nitric oxide, so they give metal nitrosyl complexes. So this is the proper definition of nitrosyl complexes. The coordination compounds of transition metal containing nitrosonium as ligand, they are called as metal nitrosyls or nitrosyl complexes, right? अच्छा, आप देखें जो नाइट्रोसाइल लीगेंड है, एज आई हैव मेंशन्ड, दिस कैन एक्ट एज 1 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर एक्ट कर सकता है। पहले देखें ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो ये नाइट्रोसोनियम आयन बन जाएगा और आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा 2.5 से 3, राइट, और इस तरह से ये कंसिडर किया जाता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है।
अच्छा, अब ये नाइट्रोसोनियम केटाइन कैनोनिकल फॉर्म की मदद से ये मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट। और इसमें ये जो नाइट्रोसोनियम आइन है वो नाइट्रोजन के ऊपर जो अपना लॉन पेयर है वो मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर सकता है। दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और ये जो नाइट्रोसोनियम आइन है ये बिहेव करता है लाइक इट्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर पार्ट्स, ठीक है। जैसे ये कार्बोनाइल लिगेंड है, तो कार्बन के पास आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास है 8, टोटल 14 हो गए। तो यहाँ पर नाइट्रोसोनियम आइन नाइट्रोजन के पास है 7, और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके पास भी 7 ही होंगे, तो 7 7 ये भी 14। इट मीन्स कि ये जो नाइट्रोसोनियम आइन है this is isoelectronic, that it has the same number of electron as carbonyl as well as cyanide. Likewise, you can calculate the number of electron in this ion. तो यहाँ पर कार्बन के पास 6 हैं और नाइट्रोजन के पास 8 हैं, ठीक है, क्योंकि n माइनस है। तो इस वजह से यहाँ पर भी 6 और 8 14 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। सो इन दिस वे नाइट्रोसोनियम आइन, carbonyl molecule as well as this cyanide, they are considered as isoelectronic because they have the same number of electrons. Okay, again these things I have already discussed. Nitrosyl complexes में the attachment of nitrosonium ion to the metal ion atom or ion takes place through nitrogen atom. Nitrosonium ion NO plus, this is known as nitrosonium ion, or you may say it as nitrosyl cation, and this act as a ligand. So यानी एक्चुअली देखें ये एक ऐसी एग्जांपल है लीगेंड की जिसमें पॉजिटिव आयन जो है वो लीगेंड के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो उसमें ये हमने पढ़ा था कि न्यूट्रल एटम्स, नेगेटिव एटम्स यानी एनाइंस और केटाइन जो है वो एक्ट कर सकते हैं एज लिगेंड। सो दिस इज एन एग्जांपल, दैट इज नाइट्रोसोनियम आयन in which we can see that a molecule having a species having positive ion, it can also act as a ligand. अच्छा जी, इसके अलावा जो क्लासिकल एग्जांपल्स हैं नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस की, ब्राउन रिंग दैट इज FeH25NO+2 is formed during क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ नाइट्रेट आयन। तो नाइट्रेट आयन की कंफर्मेशन के लिए जो ब्राउन रिंग बनती है, जिसको हम रिंग टेस्ट कॉमनली बोलते हैं, वो नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स की वजह से होती है, जिसका केमिकल फार्मूला FeH2O5NO+2 है। इसके अलावा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2Fe2NO4S2, इसमें जो नाइट्रोप्रोसाइड आयन है दिस इज कन्वीनियंटली ऑब्टेन्ड by the action of 30% nitric acid on either FeCN6-3 or FeCN6-4. So this is used in qualitative analysis. So ये जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोसोनियम कॉम्प्लेक्स आयन। अच्छा जी, अब हम इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ nitric oxide on metal carbonyl. So these are the reactions which you people just have to remember. FeCO5 plus 4NO, FeNO4 plus 5CO. Then we have iron pentacarbonyl plus 2NO at 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब ये रिएक्ट करें तो ये बनाते हैं FeCO2 NO2 plus 3CO. Then we have CO2 CO8, ये कोबाल्ट है आपके पास, ये कार्बोनाइल लिगेंड्स हैं। इसको अगर हम 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करें तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो होगा 2CO CO2 NO plus 2CO. Then we have the other reaction for the formation of nitrosyl complexes. तो इसमें क्या है, by the action of nitric oxide on metal halides in the presence of suitable metal, example given zinc and cobalt, which act as halogen acceptor के तौर पर ये act करता है। So this is the reaction, ठीक है। तो ये कोबाल्ट आयोडाइड है, COI2 4 plus 4NO plus CO, and this will result in the formation of this nitrosyl complex, and then we have 2NiI2 plus 2NiI2 plus 2NO plus Zn, and this will result in the formation of 2Ni
NOI plus ZnI2. So in this way you can see the formation of these nitrosyl complexes. There is one more reaction in which you can see the preparation of नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस, और इसमें एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले रहे हैं जिसके अंदर कार्बोनाइल लिगेंड्स भी हैं और नाइट्रोसाइल भी, और इसको हम आयोडीन के साथ ट्रीट करवाएंगे। आयोडीन जो है वो इन कार्बोनाइल्स को रिप्लेस कर देगी, ठीक है, और हमारे पास सिर्फ जो नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स है वो बन जाएगा। नाउ वी हैव द प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बोनाइल और नाइट्रो नाइट्रिक ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन अटैच होता है, तो अगर हम इनका किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ रिएक्शन करवाएं तो उसमें ये होता है कि सिर्फ कार्बोनाइल लिगेंड जो है वो रिप्लेस होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो रिप्लेस नहीं होता। इसकी रीज़न क्या है कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन मेटल के साथ ज़्यादा मजबूती के साथ अटैच होता है। सो एज यू कैन सी हियर कि ये दो हमारे पास लिगेंड के मॉलिक्यूल हैं, सो दे विल रिप्लेस दीज टू कार्बोनाइल लिगेंड्स। Likewise, we have other strong ligands like PR3, CNR as well as phenanthroline। ये phenanthroline की स्ट्रक्चर जो है अगले लेक्चर में मैं तफसील से डिस्कस करूंगी। एनीवेज, ये जो phenanthroline है इसमें दो नाइट्रोजन्स होते हैं और उन दो नाइट्रोजन्स के ऊपर दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़ाहिर होंगे। तो इस वजह से क्या है कि phenanthroline का एक ही मॉलिक्यूल ये दो कार्बोनाइल्स को रिप्लेस करने के लिए सफिशिएंट होता है। That is why you can see one molecule of phenanthroline here, like here, PHEN NO twice, और ये दो कार्बोनाइल जो हैं ये बाहर आ जाएंगे। Oh, I have given it here. Oh, that's good. So this is the molecule of phenanthroline. You can see that two nitrogens, they are present here. They will have टू लॉन पेयर्स, इनके ऊपर दो लॉन पेयर्स होंगे। इस वजह से नाइट्रोजन के ये वाला फेनोल्थ्रोलिन का एक मॉलिक्यूल कार्बोनाइल के दो लिगेंड्स को रिप्लेस करने के लिए सफिशिएंट है। ओके, many metal carbonyl nitrosyl when treated with halogens they are converted into nitrosyl halides। तो ये वाला रिएक्शन जो है हमने प्रेपरेशन में भी डिस्कस किया है। मेटल नाइट्रोसाइल हेलाइड्स दे रिएक्ट विद अदर लिगेंड्स टू फॉर्म मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। तो ये जो हमारे पास मेटल नाइट्रोसाइल हेलाइड्स हैं ये दूसरे लिगेंड के साथ रिएक्ट करते हैं और ये फिर मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं। अब इसमें ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है देखें, ये इसको ओवरऑल जो है ट्वाइस है, यानी इसमें आयरन भी दो हैं। लेकिन अगर आप देखें कि ये डाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स था। अब मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है जिसमें एक ही आयरन एटम हो, और डाइन्यूक्लियर जिसमें दो दो मेटल एटम्स हों। तो जब हम इसको दो लिगेंड के साथ ट्रीट करवाएंगे सो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज अ मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, डाइन्यूक्लियर से ये मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा अगर हम FeNO2 ट्वाइस I2, सो दिस इज ऑल्सो अ डाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, इसको हम K2S के साथ पोटाशियम सल्फाइड के साथ ट्रीट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल क्लोराइड, अगेन यू विल गेट अ मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स plus 2KCl। So now we will briefly discuss the applications of metal nitrosyls. Metal nitrosyls are assumed to be intermediate in catalytic conversions which reduce the emission of NOx from internal combustion engines. This application has been described as one of the most successful stories in the development of catalyst। तो मेटल नाइट्रोसाइल्स जो हैं कैटालिटिक कन्वर्जन में इंटरमीडिएट का काम देते हैं और इससे नॉक्स विच आर हार्मफुल एनवायरमेंटल केमिकल्स उनका एमिशन भी कम हो जाता है, which is very good। Metal catalyzed reactions of nitric oxide are not often used in organic chemistry. In biology and medicine, nitric oxide is, however, an important signaling molecule in nature।
and this fact is the basis of most important applications of metal nitroxides. तो एक्चुअली क्या है कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसकी डिटेक्शन जो है काफ़ी इजी होती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको बायोलॉजी और मेडिसिन में इसको डिटेक्ट करना आसान होता है। दैट इज़ वाई it has important application in biology and medicine. The nitroproside FeCN5NO-2 which is a mixed cyano complex, ठीक है। ये साइनाइड जो है ये भी एक लिगेंड है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड, सो दिस इज अ मिक्स complex nitrosyl complex with cyanidine. This has pharmaceutical application as a slow release agent for nitric oxide, right? तो अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर से नाइट्रिक ऑक्साइड की ये स्लो रिलीज करेगा साइनाइड की प्रेजेंस की वजह से, which has pharmaceutical application. The signaling function of nitric oxide is affected by its complexation to heme proteins, where it binds in the bent geometry. Nitric oxide also attacks iron sulfur proteins, giving dinitrosyl ion complexes. ठीक है, तो ये जो सिग्नलिंग फंक्शन जो है जाहिर है ये इफेक्ट होगा नाइट्रिक ऑक्साइड का अगर ये हीम प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्सेशन बनाता है, क्योंकि ये बेंट ज्योमेट्री में चला जाता है। इसकी ज्योमेट्री लीनियर और बेंट होती है, ये हम आगे जाके लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसका बॉन्डिंग जब हीम प्रोटीन के साथ होता है तो इसका सिग्नलिंग इफेक्ट जो है वो मुतासर होगा, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड के हमने डिफरेंट टेस्ट पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी। तो लेकिन वो उसी सूरत में है अगर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है फ्री मीडियम के अंदर प्रेजेंट होगा, और अगर ये बाउंड हो गया है प्रोटीन के साथ तो जाहिर है ये फ्री फॉर्म में रिजल्ट जो है वो नहीं दे पाएगा। So these are the applications of metal nitrosiles. Thank you very much for watching this video. If you have understood, that is very good. If you have any problem, any questions, you are very welcome to ask. So if you have enjoyed and understood, please subscribe, like and share. Thank you very much. Allah Hafiz.